Hello, student. In last lecture, we are discuss about the free falling body. Okay? And for that, we are finding out the value of acceleration due to gravity, small g, and this value is 9.8 meter per second square. And also, we are deriving the equation for the motion. Okay? V is equal to u plus gt, s is equal to ut plus half gt square, and v square minus u square, this is equal to 2gs. Okay, we are deriving three equation of motion for the freely falling body, and value of g we are taking is plus 9.8 for the downward direction, and value of g we are taking minus 9.8 for the upward direction. Okay, so now we will solve some numericals based on it. Okay, so you should get the clear idea about it. Okay, so very first numerical, what is the given in data? A particle is thrown up vertically with a velocity of 50 meter per second. What will be the velocity at the highest point of its journey? How high would the particle rise, and what time would it take to reach the highest point? Okay? यहाँ क्या दिया है कि दिस इज अवर सरफेस, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ये पार्टिकल को हम अपवर्ड डायरेक्शन में उनको थ्रो कर रहे हैं विथ ए वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड. मतलब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जो है वो दिया है 50 मीटर पर सेकंड. Initial velocity is given, and we are throwing this object in upward direction. Okay, so when this object is reached at the topmost height, okay, so we have to find out the final velocity of this object, the distance traveled by the object, and time taken to reach at the highest point. Okay, this value we have to find out. Here the value given, initial velocity is given 50 meter per second, and we are throwing this object in an upward direction. Okay, so when any body is a freely falling body, either it is dropped down or we are throwing. At the times we are considering it. Okay, this is object is travel with an acceleration g is equal to 9.8 meter per second square. Okay, because it is under the influence of gravitational force. So according to that, it acquired the acceleration. This value is equal to 9.8 meter per second square. Okay, but here the body is traveling in upward direction. So when the body is traveling upward direction, what is the sign of a g? G we are getting is minus 9.8 meter per second square. We are getting. Okay. Now we have to find out the final velocity. So when we are throwing any object in upward direction, so once it's reached at the top height, and once again it comes into the downward direction. So for a moment, when the body reaches at the top height, it comes to the rest position. It comes to the rest position. So final velocity we are getting is 0. Final velocity we are getting is 0, because ultimately it come to the rest position. Then once again it start to come in a downward direction. So for the any body, any object, when we are throwing in upward direction, at that time the final velocity of the body is always 0. Okay, so we are getting first answer, final velocity v is equal to 0. So first answer we are getting is v is equal to 0. Okay. Now second we have to find out the distance travel we have to find out. So h is nothing but a distance travel s. Okay. So we have to find this value. So we have two formula.
Okay, this s is equal to ut plus half gt square, or the polar v square minus e square is equal to 2gs. So we can use any one formula out of this two formula. Okay, but in this formula we require the time. तो यहाँ पे टाइम तो दिया नहीं है. Okay, so in this formula we require the v, u, g and s. Okay, s फाइंड करना है हमें. g की वैल्यू दिया है, u की वैल्यू दिया है, v की वैल्यू दिया है, तो we can use this equation. So we are using v square minus u square is equal to 2gs. Okay, so v is a 0, value of u, so u we are getting is square of 52, value of g is minus 9.8 into s. Okay, so s value we are getting is equal to minus minus become plus, so we are getting 50 into 50 upon 2 into 9.8. Okay, so approximately this value we are getting is 127.5 meter. So height h we are getting is equal to 125.7 meter. The value of h we are getting is 127.5 meter. This height is acquired by this object. ये ऑब्जेक्ट की इतनी हाइट एक्वायर करेगा. ठीक है. नाउ थर्ड वी हैव टू फाइंड आउट टाइम t. टाइम t फाइंड करना है. तो t फाइंड करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है. ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं. तो ये हमारे लिए इजी रहेगा यूज करने के लिए. टाइम फाइंड करना है तो okay, v इज इक्वल टू u प्लस gt. ओके, सो फाइनल वैल्यू इज 0, u इज 50, g is minus 9.8 into t. So we are getting 9.8 t is equal to 50. So t is equal to 50 upon 9.8 second. Okay, so time taken by this we are getting 50 upon 9.8. So approximate value we are getting is 5.1 second. So time taken to reach over here is 5.1 second. Okay, so this way we can find this value. Okay, now second numerical. A ball is dropped from a top of a tower of 40 meter height. 40 मीटर हाइट का एक टावर है, उसमें से हम एक बॉल को क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं. What is its velocity when it covers a 20 मीटर डिस्टेंस. जब वो 20 मीटर डिस्टेंस कवर करता है उसी टाइम पे उनकी वेलोसिटी क्या होगी. एंड व्हाट वुड बी इट्स वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड. और जब वो ग्राउंड को हिट करता है तब उनकी वेलोसिटी है वो क्या होगी. ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, एक टावर दिया हुआ है. ओके, जिसकी हाइट दिया हुआ है h इज इक्वल टू 40 मीटर हाइट दिया हुआ है. ठीक है, यहां से एक बॉल है, इसको हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप डाउन कर रहे हैं. यहां से ये बॉल है वो नीचे आ रहा है. ठीक है, ये बॉल जो है, अब ये बॉल है जब ये 20 मीटर डिस्टेंस काट के यहां पे आएगा उसी टाइम पे उनकी वेलोसिटी क्या होगी वो हमें फाइंड करना है. और जब वो बॉल ग्राउंड लेवल पे आएगा तब उनकी वेलोसिटी क्या है वो हमें फाइंड करना है. ठीक है, इसको हम v1 बोल देते हैं, इसको हम v2 बोल देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इनकी वेलोसिटी क्या होगी वो हमें फाइंड करना है. और जब ग्राउंड पे हिट करेगा तब उनकी वेलोसिटी क्या है वो वेलोसिटी हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो यहाँ पे है इनिशियली वो रेस्ट पोजीशन पे होगा. यहाँ पे जो है तो इनिशियली जो हमारी वैल्यू होगी, इनिशियल वेलोसिटी u यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी. और एक्सेलरेशन g की वैल्यू क्या आएगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा. और बॉडी कहाँ पे आ रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे आ रही है तो g की वैल्यू क्या रहेगी, प्लस रहेगी. ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमें कंसेप्ट को समझना है, कैलकुलेशन को नहीं समझना है. ठीक है, तो g की वैल्यू है सिंपल कैलकुलेशन के लिए इंस्टेड ऑफ 9.8 वी कैन ऑल्सो टेक 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो अब हमें फाइंड क्या करना है, जब ये 20 मीटर का डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है.
ठीक है, s इज इक्वल टू 10 मीटर, यहाँ पे हमें फाइंड करना है वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, डिस्टेंस ट्रैवल दिया हुआ है, g दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है। तो कौन सी फॉर्मूला हम यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs, क्योंकि v हमें फाइंड करना है, u दिया हुआ है, g दिया हुआ है, s दिया हुआ है। ठीक है, सो वी कैन यूज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर is equal to 2gs. okay, so we are getting value of v1 square minus u square, u की वैल्यू क्या है 0 है, and 2 g की वैल्यू क्या है 10, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है 20, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है 20, so we are getting v1 square is equal to 400. okay, so v1 we are getting is equal to 20 meter per second. ओके, सो जब वो 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इसी टाइम पे इनकी वेलोसिटी यहाँ पे होगी 20 मीटर पर सेकंड। ओके, सो वेलोसिटी वी आर गेटिंग इज 20 मीटर पर सेकंड एट दिस प्लेस। ओके, नाउ सेकंड हमें क्या फाइंड करना है अभी, कि भाई यहाँ से यहाँ तक जब आएगा फाइनली यहाँ पे, तब यहाँ पे इनकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, वो वेलोसिटी को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, वो वेलोसिटी को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इनके लिए हम यहाँ पे है सेम सिचुएशन को यूज कर सकते हैं, यहाँ से लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, इनको लेके ये सिचुएशन को भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों के साथ कर सकते हैं। तो हम यहीं से लेते हैं सिंप्लीफाइड के लिए कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, अब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल क्या हो गया 40 इंस्टेड ऑफ 20, बिकॉज वो ग्राउंड को हिट कर रहा है, तो हाइट ऑफ टावर इज गिवन 40। ये फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, जी की वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी, तो सेम फॉर्मूला वी हैव टू यूज इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। सो v हमें फाइंड करना है v2 स्क्वायर। ओके, u की वैल्यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एंड 2 g की वैल्यू क्या है हमारे पास अभी 10, और s, तो यहाँ टोटल डिस्टेंस ट्रैवलिंग क्या हो जाएगा 40, टोटल डिस्टेंस ट्रैवलिंग क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या आएगा कि v2 स्क्वायर वी आर गेटिंग इज इक्वल टू 800, वी आर गेटिंग इज इक्वल टू 800। ओके, सो v2 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी अंडर रूट 800 हमें वैल्यू मिलेगी, अंडर रूट वी आर गेटिंग इज 800, सो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ v2 वी आर गेटिंग इज इक्वल टू 28 मीटर पर सेकंड। ओके, approximate value we are getting, okay, over here is 28। okay, so यहाँ पे जब आएगा वो हिट करेगा ग्राउंड को, तब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 28 मीटर पर सेकंड हो जाएगी उसकी वेलोसिटी। ठीक है, so we should get the velocity at the half distance covered and final distance covered। okay, next example, क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट, कोई एक ऑब्जेक्ट है उनको एक हाइट से हम रिलीज कर रहे हैं, हाइट दिया नहीं हुआ है, कहां से रिलीज कर रहे हैं वो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड इट्स स्पीड एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड, t इज इक्वल टू 2 सेकंड एंड t इज इक्वल टू 3 सेकंड। ठीक है, तो यहां से ये जो ऑब्जेक्ट यहां पे आएगा, ओके, सो व्हाट विल बी द time? okay, time t1 is given 1 second। okay, after that it comes over here at time t2, it comes at time t2 is equal to 2 second, then time t3 it comes at 3 second, it comes over here। so what we have to find out the speed over here, यहाँ पे हमें वेलोसिटी फाइंड करना है, यहाँ पे हमें वेलोसिटी फाइंड करना है, और यहाँ पे हमें वेलोसिटी फाइंड करना है कि t इज इक्वल टू 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद और 3 सेकंड के बाद वो जो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है उनकी वेलोसिटी क्या है वो हमें फाइंड करना है। अनदर थिंग व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज डिस्टेंस ट्रैवल, तो
तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हुआ h1 हुआ, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हुआ वो h2 हुआ, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो h3 हुआ। तो वी हैव टू फाइंड h1, h2 एंड h3 हमें फाइंड करना है। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये सभी केस के अंदर हमारा g की वैल्यू क्या रहेगा 9.8, सो वी कैन टेक इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो g की वैल्यू क्या रहेगी, प्लस रहेगी। g की वैल्यू क्या रहेगी, प्लस रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने टाइम दिया हुआ है t इज इक्वल टू 1 सेकंड दिया हुआ है, और ये वेलोसिटी फाइंड करना। अब यहाँ पे इनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, 0। शुरू में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है। g दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, टाइम दिया है, तो कौन सी फॉर्मूला हम यूज करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस gt। ये फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। v हमें फाइंड करना, u दिया है, g दिया है, t दिया है। ओके, सो व्हाट वी आर गेटिंग, v1 u इज इक्वल टू 0 प्लस g इज इक्वल टू 10 एंड टाइम t1 वैल्यू गिवन is 1 second, so v1 we are getting is 10 into 1, so we are getting 10 meter per second। okay, we are getting is 10 meter per second मिल गया। अब यहाँ पे हमें v2 वैल्यू फाइंड करना है, तो फिर से यही यहाँ से यहाँ तक का लेते, यहाँ से यहाँ तक टाइम क्या है 2 सेकंड, ठीक है। g सेम है, इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो यहाँ पे we are getting v2 is equal to 0 plus 10 into t2। okay, so v2 value we are getting is equal to 10 into 2, so we are getting is 20 meter per second। we are getting is 20 meter per second। now थर्ड यहाँ पे v3 फाइंड करना है, तो सेम चीज होगी, v3 we are getting is equal to 0 plus 10 into 3, 10 into 3, so we are getting is equal to v3 is equal to 30 meter per second। ओके, सेम चेंज मिलेगा हमें स्पीड में, क्यों, क्योंकि टाइम इंटरवल यहाँ पे सेम दिया है और एक्सेलरेशन भी सेम है, इनिशियल वेलोसिटी भी सेम है, ठीक है। तो जो जो वेलोसिटी हमें मिलेगा वो डिफरेंस यहाँ पे 10 तो 20 30 ऐसे हमें वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड करना है, डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड करना है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, g दिया हुआ है, u दिया हुआ, तो विच फॉर्मूला वी आर यूजिंग, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। सो वी आर गेटिंग h1, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, प्लस हाफ g into t1 square, so h1 is equal to half, value of g is 10 and t1 square is 1। okay, so we are getting this is 5 meter। okay, so distance travel in first second we are getting is 5 meter। okay, अब सेकंड हमें फाइंड करना है, तो we are getting h2, ये तो u0 है तो ये 0 हो जाएगा, हाफ, okay, g into t2 square, so h2 we are getting is half, g is 10 और t दिया हुआ है हमें 2 सेकंड, so we are getting 2 into 2 we are getting is 4। okay, so ये 2 हो जाएगा, so h2 we are getting is equal to 20 meter। so distance travel we are getting is 20 मीटर हमें मिलेगा, ठीक है। जो डिस्टेंस ट्रैवल मिलेगा वो। नाउ हम h3 फाइंड करता है सिमिलरली, सो h3 मिलेगा हमें, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस हाफ g इंटू t3 स्क्वायर, सो h3 हाफ g इज 10 और t3 हमें दिया हुआ है 3, सो 9 वी आर गेटिंग। ओके, सो हियर वी आर गेटिंग इज 5, सो h3 वी आर गेटिंग इज 45 meter। so distance travel we are getting is 45 meter। okay, so we are getting distance travel after t is equal to 1 second, t is equal to 2 second and t is equal to 3 second। okay, so this way we can find the distance travel and velocity at different timing। okay,
Now next example. अब बॉडी को क्या कर रहे हैं, अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। ए बॉडी इज थ्रोवन अपवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकंड। इनकी इनिशियल वेलोसिटी दिया है 29.4 मीटर पर सेकंड से वो अपवर्ड डायरेक्शन में हम थ्रो कर रहे हैं। सो व्हाट इज द स्पीड आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड, 2 सेकंड एंड 3 सेकंड। सिमिलर टाइप है एग्जाम्पल कि हमें यहाँ पे टाइम t1 1 सेकंड है, उसी टाइम पे हमें उनकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। यहाँ पे वो है टाइम t2 इज इक्वल टू 2 सेकंड है, उसी टाइम पे वेलोसिटी फाइंड करना है। और यहाँ पे है टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड, वहाँ पे उनकी वेलोसिटी फाइंड करना है। और यहाँ पे हमें ये फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रैवल h, ये डिस्टेंस ट्रैवल h2 फाइंड करना है, और ये डिस्टेंस ट्रैवल h3 हमें फाइंड करना है, ठीक है। सेम एग्जांपल है, ओनली डिफरेंस क्या है कि उसमें क्या था, वो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे g की वैल्यू क्या रहेगी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट अपवर्ड डायरेक्शन है तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस आएगी, ठीक है। वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। अब हमें सिमिलर है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दिया है, g दिया है, t दिया है, वी हैव टू फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी। सो व्हाट वी आर गेटिंग, v इज इक्वल टू u प्लस gt, ओके। सो v1 वी आर गेटिंग इज इक्वल टू u, तो u यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है 29.4 प्लस g इज 10 into t1, okay. So what we are getting, v1 is equal to 29.4 plus 10 into t1 given is 1 second. So we are getting velocity is equal to 39 per second. Velocity v1 we are getting, okay. Sorry, यहाँ पे g माइनस लिया जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन है, सो g वैल्यू इज माइनस। सो अब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 19.4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें v2 फाइंड करना है, सो सेम फॉर्मूला आ जाएगा, v2 इज इक्वल टू u प्लस g इंटू t2, ओके। सो इनिशियल वेलोसिटी है 29.4, ओके, g है -10 एंड t2 है हमारा 2, ओके। सो इसमें से 20 माइनस हो जाएगा तो वी आर गेटिंग 9.4 मीटर पर सेकंड। स्पीड डिक्रीज होती जाएगी क्योंकि हम अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। उसमें स्पीड इंक्रीज होती थी क्योंकि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन पे आ रहे थे। अब वेलोसिटी v3 यहाँ पे फाइंड करना है, u प्लस g इंटू t3, ओके। तो इसमें u है वो क्या दिया हुआ है 29.4, ओके। यहाँ पे दिया हुआ है g है वो -10 और t3 दिया हुआ है 3, ओके 3, तो यहाँ पे 30, सो हमने 10 लिया है। अगर हम 9.8 लेते हैं यहाँ पे तो एग्जैक्ट वैल्यू वी आर गेटिंग 29.4, तो ये वैल्यू क्या मिल जाती, 0। सो अल्टीमेटली एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी बिकम्स 0, क्योंकि यहाँ पे 30 है। अगर हम उनको 9.8 इंटू 3 ले लेते हैं, सो वी आर गेटिंग इज एग्जैक्ट वैल्यू इज 0, ओके। सो वेलोसिटी वी आर गेटिंग इज 0। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द distance travel, so same formula we are using, s is equal to ut plus half gt square, ठीक है। तो यहाँ पे h1 हमें मिलेगा, तो u दिया हुआ है हमें 29.4 इंटू t1, सो t1 की वैल्यू दिया हुआ है 1 माइनस हाफ, g की वैल्यू 10 है इसलिए माइनस आ जाएगा और t की वैल्यू आ जाएगा 1, ओके। सो यहाँ पे ये 5 आ गया, सो h1 वी आर गेटिंग 5 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो वी आर गेटिंग इज 24.4 मीटर, वी आर गेटिंग इज 24.4 मीटर, ओके। सेकंड h2 हमें फाइंड करना है, सो h2 वी आर गेटिंग सेम 29.4 इंटू 2 इज 2 सेकंड माइनस हाफ, यहाँ पे हो गया ये 10 और यहाँ पे हो गया 2, तो स्क्वायर ऑफ 2 वी आर गेटिंग इज 4, okay, over here. So here 2 is cancelled over here, so and it's multiplying, okay. So multiplying we are getting is 58.8 minus we are getting is 20, okay. So we are getting is 38.8 meter,
38.8 meter. Okay, now h3 final height, this 29.4 into 3 minus half, g is 10 and t is t, so we are getting is 9. Okay, so this multiplying with 3, so we are getting is 78.2, we are getting is 78.2 and यहाँ पे 5, so minus 45. Okay, so minus 45 करेंगे तो what we are getting over here is, कहाँ हमने कुछ 29.4 into 3 बार 26, सॉरी यहाँ पे वी आर गेटिंग इज 88 आएगा ना, 88.2 आएगा. ठीक है, और यहाँ पे है वो 2 से होगा 5. ओके, और 3 सो 45, तो इसमें से 45 माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 43.2 मीटर. सो फाइनल हाइट वी आर अचीविंग इज 43.2 meter. We are getting is the final height when reached at the topmost position. Okay, now next example. Okay, a body drop from a edge of roof. एक यहाँ पे रूफ दिया हुआ है, यहाँ से क्या हो रहा है, एक जो बॉडी है, ठीक है, एक बॉल है, वो यहाँ से ड्रॉप हो रहा है. ठीक है, ए बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम द एज ऑफ ए रूफ, इट पासिस ए 2 मीटर हाइट विंडो इन 0.1 सेकंड. ये रूफ है तो यहाँ पे एक विंडो दिया हुआ है. ठीक है, ये विंडो का हाइट दिया हुआ है 2 मीटर. हाइट ऑफ विंडो इज गिवन इज 2 मीटर. ठीक है, और क्या दिया हुआ है, द बॉडी इज पास टू द विंडो इन 0.1 सेकंड. मतलब इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जो टाइम लग रहा है वो दिया है 0.1 सेकंड दिया हुआ है. हाउ फार इज द रूफ अबव द विंडो, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है. हमें क्या फाइंड करना है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड कर, रूफ से विंडो है वो कितनी नीचे है वो हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. यहाँ से हम ड्रॉप कर रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पे हमें इनिशियल वेलोसिटी दिया है और जी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 10 मीटर पर सेकंड, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे तो जी की वैल्यू क्या होगी प्लस होगी. ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, ये डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड करना है, इसका डिस्टेंस ट्रैवल. तो इसका डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड करना है तो इसके लिए हमें u दिया हुआ है. ठीक है, g दिया हुआ है, बाकी कोई वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो डायरेक्टली हम नहीं, हमारे पास फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs. ये फॉर्मूला का हमें यूज करना है. ठीक है, तो इसमें हमें इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, सो v स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, तो हो जाएगा 2gs है वो हमारा h1 हो गया. तो h1 हमें फाइंड करना है तो क्या आएगा v स्क्वायर अपॉन 2g आएगा, v स्क्वायर अपॉन 2g आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर इनकी वैल्यू हमें मिल जाती है v स्क्वायर की वैल्यू तो g की वैल्यू, तो हम h1 की वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे की वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी हमें फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी हमें फाइंड करना पड़ेगा, ये v की वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे अब v की वैल्यू फाइंड करने जाएंगे तो v की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ये जो v मिला v स्क्वायर वी आर गेटिंग इज इक्वल टू 2g इंटू h1. So we are getting v square is equal to 2g is 20 into h1. So we are getting is under root 20 into h1. इतना वेलोसिटी यहाँ पे होगा, v is equal to under root 20 into h1 वेलोसिटी यहाँ पे आया. ठीक है, तो इनके लिए क्या बन गया इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ के लिए
velocity u1 we are getting is equal to v is equal to under root 20 h1. यहां के लिए इनिशियल वेलोसिटी हुआ. अब यहां के लिए हम फाइनल वेलोसिटी जो है, ठीक है, ये तो यहाँ की फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं. या तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है. तो ये फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, वो वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं. या तो इनकी वेलोसिटी से ये इक्वेशन को हम यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर. तो यहाँ पे हमारा s है वो क्या आ जाएगा 2. ये विंडो का जो हाइट है वो डिस्टेंस ट्रैवल हमारा हो गया 2. अब विंडो के यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है, अंडर रूट 20 इंटू h1 इंटू टी. तो t यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.1 सेकंड दिया हुआ है, प्लस हाफ g की वैल्यू है वो 10 है और t की वैल्यू है 0.1, उसका स्क्वायर, सो 0.01 आ जाएगा. इसका जो स्क्वायर करेंगे हम तो, ठीक है. तो अब इसमें से हमें h की वैल्यू निकालना होगा, ठीक है. तो हम क्या मिलेगा, h अंडर रूट 20 इंटू h1 इंटू 0.1, इट मीन्स वी आर गेटिंग इज अपॉन 10. यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई विथ 0. सो वी आर गेटिंग इज 0.1 एंड डिवाइड बाय 2, मतलब ऐसा आएगा 10, यहाँ पे 1 अपॉन 100 और यहाँ पे आएगा 2, ठीक है. सो 2 यहाँ पे 5 आ जाएगा. वी आर गेटिंग, सो वी आर गेटिंग इज 2 अंडर रूट 20 इंटू h1 अपॉन 10 प्लस ये 2 0 तो 0.05 आ जाएगा. अब इनको इधर ले आएंगे तो 2 माइनस 0.05, ओके, अंडर रूट 20 h1 अपॉन 10 आ जाएगा, ठीक है. अब 2 में से 0.05 को हम माइनस करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा उसमें से 1 ठीक है, 2.00 माइनस 0.05. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा और 1. सो 1.95 अंडर रूट 20 इंटू h1 अपॉन 10. अब इनको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 19.5 अंडर रूट 20 इंटू h1. तब दोनों साइड हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा 19.5 इंटू 19.5, दिस इज इक्वल टू 20 इंटू h1 आएगा, ठीक है. तो अब यहाँ पे ये h1 हमें मिलेगा 19.5 इंटू 19.5 अपॉन 20. तो इनको हम अप्रोक्सीमेट मान के कैंसिल कर लेते हैं. सो अप्रोक्सीमेट h1 वी आर गेटिंग इज 19.5 मीटर. अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ h1 वी आर गेटिंग ओवर हियर, के विंडो है वो रूप से कितना नीचे होगा, तो कि 19.5 मीटर है वो नीचे होगा, ठीक है. So this way you can solve the numericals based on that. So you can do the practice of more numerical, okay. Now our next concept, okay, is mass and weight. आज तक आप समझते आए हैं कि मास और वेट दोनों सेम है. जो हम मेजर करते हैं रेगुलर लाइफ में, हम बताते हैं कि हमारा वेट क्या है, हम बताते हैं इतने केजी. सो एक्चुअली दिस इज नॉट ए वेट, दिस इज व्हाट मास. वो एक्चुअल में क्या है, मास है, वो वेट नहीं है जिसको हम वेट मानते आते हैं. वेट इज ए डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, मास इज ए डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी. सो मास क्या है, मास इज क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट कंटेन इन ए बॉडी. Okay, it is a matter contained in a body. बॉडी के अंदर कितना कंटेन है, ठीक है, कितना उनका मास है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मास, ठीक है. द यूनिट ऑफ मास, ओके, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज केजी. हम मास जो मेजर करते हैं
जो वैल्यू मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, केजी बोलते हैं, ठीक है। और मास इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, मास को डायरेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है। और मास इज यूनिवर्सल रिमेन कांस्टेंट, आप कहीं भी जाएंगे मास सेम रहेगा यूनिवर्सली, ओके, इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट। हम कोई भी जगह पे हमारा मास है, जैसे हम मान लेते हैं कि बॉडी, तो बॉडी के हमारा जो मास है, मतलब ये बॉडी के अंदर जो कंटेंट है वो मास है। तो अगर हम कोई भी जगह पे कोई भी प्लेस पे चले जाएंगे तो हमारा मास क्या रहेगा, सेम रहेगा, मास चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये बॉडी है वो बॉडी यही रहने वाला है। ये पेन है, ये पेन का जो कंटेंट है उनका मास हो, तो पेन को हम कहीं भी ले जाएंगे ये पेन पेन ही रहने वाला है, मतलब मास विल रिमेन कांस्टेंट। आप कहीं भी जाएंगे यूनिवर्सली हम जाएंगे तो मास की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जो मास की वैल्यू है वो कहीं पे चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो वेट क्या है, सो एक्चुअली वेट क्या है, फोर्स है। Weight is a force with which the earth attract a body. Okay, weight, it is a force with which earth attract a body. अर्थ जो है वो बॉडी को अट्रैक्ट करने के लिए कितना फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स इज नथिंग बट ए वेट, वो फोर्स है वो वेट है, ठीक है। तो फोर्स कितना होगा, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू टी, इतना फोर्स लगेगा मास ऑफ द बॉडी, और एक्सेलरेशन ग्रेविटी है ड्यू टू, सो इतना एफ इंटू एम जी, ओके। सो इनको हम बोलते हैं वेट, जो हम आज तक समझ आते हैं, ठीक है। जिसको वेट समझते थे वो एक्चुअली वेट नहीं था, वो क्या था, मास था। So okay, so mass is a physical fundamental quantity we are measure in form of a kg, but weight is a force which is applied by the earth on a body. अर्थ से बॉडी पे जितना अट्रैक्टिव फोर्स लगता है वो फोर्स एक्चुअल में वेट है, ठीक है। तो वेट वी आर गेटिंग एफ इज इक्वल टू एम जी, तो एफ इक्वल टू एम जी लेते हैं तो इसका एसआई यूनिट क्या आएगा, न्यूटन आएगा, क्योंकि ऑफ फोर्स इज न्यूटन। सो वेट का एक्चुअल यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, और वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी आएगी, क्योंकि फोर्स क्या है, वेक्टर है, इसलिए उसकी वैल्यू क्या आएगा, वेक्टर। और इट्स वैल्यू इज चेंज, ओके, प्लेस टू प्लेस, ये यूनिवर्सली इसकी वैल्यू सेम नहीं रहेगी, प्लेस टू प्लेस चेंज होगी, क्योंकि प्लेस टू प्लेस वैल्यू ऑफ जी इज नॉट रिमेन सेम, क्योंकि अर्थ पे जी की वैल्यू अलग होती है, मून पे जी की वैल्यू अलग होती है, अलग हाइट पे जी की वैल्यू अलग होती है, इट इज नॉट इक्वल, सो वैल्यू ऑफ वेट शुड नॉट बी रिमेन सेम। जो वेट है उसकी वैल्यू सेम नहीं रहेगी, उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इट डिपेंड ऑन टू द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। उसका मास m है वो सेम रहेगा, पर वैल्यू ऑफ g शुड बी चेंज, g की वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी, दैट्स व्हाई इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये मास हमें मेजर करना है, तो मास को कैसे मेजर करता है, मेजर बाय पान स्टैंड, ठीक है। जो हमारे पास सिंपल वेजिंग मशीन होता है जिसको हम पान स्टैंड बोलते हैं और पान बैलेंस बोलते हैं, पान स्टैंड और बैलेंस वी कैन से दैट, जिससे हम मेजर कर सकते हैं। और इसको मेजर करना है तो ये पुलिंग एक्शन है, फोर्स है, सो इट मेजर बाय स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। जो स्प्रिंग बैलेंस हमारे पास होता है जिसको जरिए हम इनको मेजर कर सकते हैं वेट को, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, और मास और वेट के बीच में ये डिफरेंस रहता है, ठीक है। मतलब क्या है कि मास है वो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जो क्वांटिटी ऑफ मैटर हमें बताती है कि कोई भी बॉडी में कितना मैटर है, कितना कंटेंट है, वो क्या है, मास है। और वेट क्या बताता है कि विथ विच फोर्स अर्थ इज अट्रैक्ट द बॉडी, अर्थ है वो बॉडी को कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है वो वेट बताता है। तो वेट वी आर गेटिंग एफ इज इक्वल टू mg, so mass we are measure in form of kg, okay, and weight we are measure in form of newton,
mass is a scalar quantity and weight is a vector quantity. Okay, mass universally remain same क्योंकि universally matter should not change. matter कहीं पे change तो universally हम कोई भी जगह पे जाते हैं mass will be remain constant, but the value of a weight should be changed place to place because value of g is changing. g की value same नहीं रहेगी तो क्या होगा, weight की value change होगी. और we can measure the mass by the simple pan or balance stand. Okay, and we can measure the weight by the help of spring balance. So क्या difference होता है? For example हम लेते हैं कि अगर हमारा mass है वो है 60 kg on earth. अर्थ पे हमारा जो मास है वो क्या है, 60 kg है हमारा जो मास है वो. ठीक है, तो अगर अर्थ की जगह मून पे जाएंगे तो मास हमारा क्या हो जाएगा, 60 kg ही रहेगा ऑन मून. मास हमारा वही रहेगा. ठीक है, पर अगर हमारा वेट जो है वो अर्थ पे 60 न्यूटन हमारा वेट है. ठीक है, ऑन अर्थ हमारा वेट क्या है, 60 न्यूटन हमारा वेट है. तो अगर हम मून पे जाएंगे तो हमारा जो वेट है वो क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन ऑन मून हो जाएगा. ठीक है, क्यों ऐसे होगा, बिकॉज वेट इज नथिंग बट ए फोर्स. फोर्स वी आर मेजरिंग इट टू m इंटू जी. ठीक है, तो अर्थ पे हम लेंगे यहाँ पे g, और अगर हम जाते हैं मून पे सो फोर्स वी आर गेटिंग m इंटू जी यहाँ पे आएगा ऑन द मून. ठीक है, तो अब ये मास, इनका हम रेशियो निकालेंगे. ये जो हमारा वेट है इसको हम वेट ही बोल देते हैं, वेट 1 और वेट 2. तो क्या आएगा, W1 अपॉन W2 वी आर गेटिंग m GE अपॉन m इंटू GM. सो मास तो दोनों जगह पे सेम है तो कैंसिल हो जाएगा. सो वी वांट टू फाइंड आउट द वेट ऑन मून. वी आर गेटिंग इज GM अपॉन GE इंटू W1. ओके, सो अर्थ पे जी की वैल्यू है क्या है, 1/6 ऑफ द अर्थ. मून पे जी की वैल्यू क्या है, 1/6 ऑफ द अर्थ होता है. ठीक है, सो वी आर गेटिंग 1/6 इंटू 60. सो वी आर गेटिंग इज 10 न्यूटन. तो जैसे हम हाइट पे बढ़ते जाएंगे हमारा मास सेम रहेगा, हमारा वेट क्या होगा, कम होता जाएगा. मतलब अगर हम जैसे जैसे हाइट पे बढ़ते जाते हैं हमारा वेट कम होते जा रहा है, मास विल बी रिमेन सेम. अगर हम हिल स्टेशन पे जाते हैं वहां पे हम हमारा मास देखते हैं तो मास सेम है. ठीक है, बट वेट वहां पे है हमारा, अभी यहाँ पे जो वेट है उससे वहां जाके हमारा वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा जो वेट है हमारा. ठीक है, सो वेट वी आर गेटिंग इज लेस. वेट है वो धीरे धीरे करके क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा. तो स्पेस शटल में हम जाते हैं तो स्पेस शटल इज गोइंग सो फार फ्रॉम द अर्थ सरफेस. सो स्पेस शटल में वी कैन फील द एक्सपीरियंस ऑफ वेटलेस बॉडी. मास वही रहेगा पर हम वेटलेस फील करेंगे. वी कैन फ्लाई, हम फ्लाई करना शुरू कर देंगे. ठीक है, क्योंकि हमें वेट फील नहीं होगा, वी आर फीलिंग द वेटलेस. तो हम उड़ सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं स्पेस शटल में. कई बार आपने वीडियो में टीवी में देखा होगा कि स्पेस शटल के अंदर अपने आप को हमें बांध के रखना पड़ता है, नहीं तो हम हवा में उड़ने लगते हैं. क्यों उड़ने लगते हैं, बिकॉज आवर बॉडी इज बिकम वेटलेस. वहां पे हमारा वेट है, वहां पे अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी इफेक्ट निग्लिजिबल होने लगी है, जीरो होने लगी है. हमारा मास तो वहीं पे भी सेम रहेगा. देयर इज नो चेंज इन मास. वहां पे मास में कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है, सो दीज आर द कंसेप्ट ऑफ मास एंड weight. Okay, what is the difference between mass and weight? Okay, so today we will stop here. So one part of this chapter is completed regarding the universal law of gravitation, gravity, freely falling body, motion for the freely falling body, and difference between mass and weight. Okay, next we will discuss about the pressure and thrust and concept of pressure. Okay, thank you.